Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 19, Things We Make. So, children, in this chapter, we were doing exercises A, B, C, D, and E. So, we have finished exercise A, B, and C in the previous video. Now, in this video, we will be doing exercise number D and E, that is, short answers and long answers. So, first of all, we will take up exercise number D, that is, give short answers to the following questions. So I have written the answers for all the questions given in your book. So I will discuss it with you in this video. Now I will take up the first question, that is question number 1. What did the early man use pots for? Now the answer I have written is the early man used clay pots as containers to keep the grains which he had grown. So children, as we have discussed earlier also in the chapter that early man वो pots का क्या करता था, ठीक है, pots उसने क्यों बनाए थे? तो pots की ज़रूरत उसे इसलिए लगी थी कि क्योंकि जब उसने फसलें उगाना शुरू कर दिया था खाने के लिए, ठीक है, तो जब उसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और खाना के लिए उसने फसलें उगाना शुरू किया तो उसको खेत में जब उसने काफ़ी ज़्यादा फसलें उगाई तो उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय तो बर्तन थे नहीं, तो इसलिए उसने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए। सो दोज मिट्टी के बर्तन आर कॉल्ड क्ले पॉट्स, और उन क्ले पॉट्स का उसने उसको कंटेनर्स के रूप में कंटेन करने के लिए यूज़ किया। सो इट वर यूज्ड एज कंटेनर्स टू कीप द ग्रेन्स. व्हाट आर ग्रेन्स? ग्रेन्स आर दी क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इन द फील्ड, ठीक है। तो उनका जब कटाई करके वो जब लेकर आया घर पे तो उनको कंटेनर्स में स्टोर करना शुरू किया। सो दिस इज़ द आंसर. So we move to the second question, that is, how did the early man decorate his caves? So the answer is, the early man decorated his caves by painting the cave walls with different colors. So you know that early man was living in the caves in early times. तो with the जब उसने ये कलर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया पेंटिंग्स के लिए, अपने पॉट्स को पेंट करने के लिए, तो पॉट्स को पेंट करने के बाद उसने अपने घर को भी पेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी वॉल्स को, केव वॉल्स को, ताकि वो सुंदर दिख सकें। तो उसने जो है कलर्स का यूज़ किया और अपने वॉल्स को पेंट करना स्टार्ट किया। फिर उसने वाइट लाइंस भी बनाई, ज्योमेट्रिकल शेप्स के मिरर्स भी पीसेस लगाए, ठीक है, वॉल्स हैंगिंग्स यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें उसने डेकोरेट करने के लिए यूज़ की थी। तो दिस आर्ट इज़ कॉल्ड लीपन, बट आई हैव नॉट रिटन इन द आंसर, सो आई हैव रिटन ओनली द शॉर्ट आंसर that the early man decorated his caves by painting the cave walls with different colors. So this will be the only answer. I will give you the snapshot of these answers in the WhatsApp group. So we move to the third question, that is, what is used in making लीपन? Now अभी तो जो भी वो डेकोरेशन कर रहा था तो उस आर्ट को कहते हैं लीपन। अब ये पूछ रहा है कि उस लीपन में, आर्ट में क्या क्या यूज़ होते हैं, मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर लीपन? So the answer is, Lipan is an art of painting the walls and decorating them with pieces of mirrors and arrange them in patterns outlined with white lines. ठीक है, तो क्या क्या यूज़ हो रहा है? पेंटिंग में के लिए कलर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पीसेस ऑफ मिरर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हम पैटर्न्स में अरेंज कर रहे हैं, और पाउडर्ड फॉर्म में जो पाउडर होता है, वाइट पाउडर, उसको हम लोग उसका हम लोग वाइट लाइंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर्ट इज़ कॉल्ड लीपन. सो आई हैव रिटन द आंसर. Lipan is an art of painting the walls and decorating them with pieces of mirrors and arrange them in pick patterns outlined with white lines. So this finishes your exercise number D. Now we move to the next exercise, that is exercise E. Answer the following questions that are the long answer questions. Now the first question we will take up is, how do people in South India decorate their houses during festivals? So I have written the answer. People in southern India decorate their houses with mango leaves on the doors and make beautiful rangolis with different colors outside their homes. So children, they are talking about the southern part of India also, and most of the northern and other parts of India also use the same
technique for decoration during their festivals also. But in southern India, you will find it on daily basis. They used to decorate their house on daily basis and make rangolis outside their houses daily. And I have written the answer, in which you will see there is the use of mango leaves also. So mango leaves are, you can say, are very pious thing, पवित्र चीज़ें हैं जिनका हम किसी भी पूजा पाठ में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कलश और फॉर मेकिंग तोरन्स ऑल्सो. ठीक है, तो तोरन क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, मैंगो लीव्स लगाते हैं और उसको हम लोग दरवाज़ों और खिड़कियों पे भी टांग देते हैं. सो ये सारी चीज़ें डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं सदर्न इंडिया में. ठीक है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Where do we find Madhubani and Varli forms of art in India? Excuse me. So मधुबनी एंड वर्ली फॉर्म ऑफ आर्ट्स मीन्स आपको इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि मधुबनी इज़ अ प्लेस इन बिहार. ठीक है, तो आई हैव रिटन आंसर एज मधुबनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट इज़ फाउंड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार. मिथिला इज़ द रीजन, यू कैन से इट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट. तो उस रीजन में ये आपको मधुबनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट मिलेंगी. और दूसरी आर्ट है वर्ली फॉर्म्स ऑफ आर्ट. वर्ली इज़ ऑल्सो वर्ली इज़ अ प्लेस इन महाराष्ट्र. सो वर्ली फॉर्म्स ऑफ आर्ट इज़ फाउंड इन नॉर्थ सह्याद्री रेंज इन महाराष्ट्र. नॉर्थ सह्याद्री रेंज. ठीक है बेटा, ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशंस और द रेंज और एरियाज इन द स्टेट. ठीक है, तो नॉर्थ सह्याद्री रेंज जो है महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो उस रेंज में आपको वर्ली फॉर्म्स ऑफ आर्ट मिलेंगी. These all types of arts were made by the ट्राइबल पीपल्स ओवर देयर. ठीक है, तो ये बहुत ज़माने पहले से चला आ रहा है, हज़ारों साल पहले से इस टाइप की ये आर्ट्स का यूज़ हो रहा है. और इस कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इन सारी आर्ट्स का यूज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें अर्ली मैन से ही स्टार्ट हुआ था. जब उसने पेंटिंग स्टार्ट की तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, ठीक है, अर्ली मैन जैसे जैसे सिविलाइज होता गया और जानकारियाँ उसको मिलती गई, इन्फॉर्मेशन मिलती गई, पढ़ने लिखने लगा तो वो धीरे धीरे कई सारी चीज़ों में आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है और कई सारी और चीज़ों में भी वो आगे बढ़ता गया. तो उसी तरीके से ये मधुबनी आर्ट और वर्ली आर्ट भी उसका एग्जाम्पल है. So children, we finishes up with the exercise number E. Also, if you have any doubts in related to this topic or any other topic, you can ask me in the WhatsApp class. So thank you children, I end up my video here.